Assalamu alaikum everyone, welcome to your spoken English production. Myself Imran Alora, and today we are going to do 50 sentences that are being used in our daily life. So let's get started. This one is the part 2. Remember, you need to wait for the third part that will help you to memorize your English language. रोना बंद करो, चुप साधो. Stop mooning, be the change. मुझ पे मत चीखो, don't yell at me. The first thing that whenever we are going to have grief, sorrow, we're gonna share. हम जब भी अफसोस करते वक्त हमें कुछ फील होता है कि हम किस तरह से अफसोस करें, हम अफसोस किन अल्फाज से करें, तो हम ऐसे करते हैं. We should have some expression. Oh, it's very sad. Oh, it's very sad. You can express like that. It's not difficult. Just make a power of your expression by your mouth. Say, oh, it's very sad. ये तो बहुत ही अफसोसनाक है. आप क्या कह सकते हैं जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं? ये तो बहुत अफसोसनाक है. It's very sad. फिर हम कहते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे होना ही था. That's the way the things are. That's the way the things are. You know, the life is like that. Life is like that. That's the way the things are. लिखी तकदीर को कौन बदल सकता है? कौन अपने मुकद्दर के खिलाफ चल सकता है? मुकद्दर कभी चेंज नहीं हो सकता. Who can fight against the fate? कौन लिखी को बदल सकता है? हमें शदीद दुख पहुंचा. Whenever we want to say हमें बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा, we are deeply grieved. We are deeply grieved. Deeply, that is very deep word. When you are in something from your core of your heart, दिल की गहराइयों से आपको दुख पहुंचता है. We are deeply grieved. We are deeply grieved for the loss and the death of your father. कौन लिखी को बदल सकता है? मुकद्दर का लिखा. Who can fight against the fate? हमें शदीद दुख पहुंचा. We are deeply grieved. The next thing that हम अफसोस करते हैं. We offer our condolence. We offer our condolence. Condolence. उसे तसल्ली दो. Console him. मैं आपको तसल्ली देता हूँ. I console you. वो उसे तसल्ली दे रहा है. He is consoling her. हम अफसोस करते हैं. We offer our condolence. उसे तसल्ली दो. Console him. The next thing that जब आप शुक्रिया अदा करना चाहें किसी का. शुक्रिया. Oh, welcome. मेहरबानी. तेरी भी. Thank you. Thank you. Open your mouth and say thank you. Do not close your mouth while you are saying thank you. Don't spit like say thank you. Keep your mouth opening. अपना मुंह खोलो. खुले मुंह के साथ TH का साउंड निकालो. Thank you. That's more sounds like a native speaker. Say like thank you. Oh, that's alright. मतलब ठीक है. ठीक है. यानी जब हम कहना चाहें वेलकम, तो वेलकम की जगह पे आप ये भी कह सकते हो दैट्स ऑलराइट. कैसे? दैट्स ऑलराइट. गुड. शाबाश. तुम बहुत अच्छे बच्चे हो. पता है आपको क्यों हुसैन साहब? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू. डोंट मेंशन इट. ये मैं ऊपर वाली लाइन को शुक्रिया और नीचे वाली लाइन को वेलकम की जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ. That's very very kind of you. Very को दो दफ़ा कहो तो very very kind of you. Kind of you. देखो, मैंने एक दफ़ा आपको एक वीडियो बताई थी 11 अल्फाज आपको अंग्रेज़ बना सकते हैं. उसमें एक वर्ड था kind of. तो वहाँ पे kind of को मैंने लिखा था kinda. उसको पढ़ना था kinda. Such as यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गौर कीजिए, kind of. इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? That's very kind of you. बोलो. That's very kind of you. That's very kind of you.
ओके गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल। द नेक्स्ट थिंग, शुक्रिया कहते हुए, यू आर सो हेल्पफुल। इम्तिहान में आगे लड़का बैठा, उसने नकल करवा दी, आपने सुबह बाहर निकलते हुए एग्ज़ाम के एंड पे उसे कहते हो यू आर सो हेल्पफुल। नॉट एट ऑल, इतना भी नहीं, मतलब थैंक यू का जवाब नॉट एट ऑल में भी है, डोंट मेंशन इट भी है, और मेंशन नॉट एट ऑल, और पहले जो मैंने बताया था यू आर सो हेल्पफुल, नॉट एट ऑल। The last thing, while someone is saying you thank you, how to reply it? Thank you for your kind words. It's nothing. It's nothing. Alright. The next thing, thank you for your kind visit. आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया. Thank you for your kind visit. Thank you for your kind visit. It was nice to meet you. My player. अच्छा, एक दफ़ा बोलिए, इस तरह से बोलना है। जब मैं बोलना फिनिश करूं दोनों लाइनों को, आप भी वैसा बोलिएगा। अच्छा, थैंक यू फॉर योर विजिट, इट वाज नाइस टू मीट यू। मीट यू, ये मीट वर्ड है ना, ये लास्ट में आ रहा है मीट, इसको मी कह देना है, इसको भूल जाओ, तो ये बना मीट यू। इट वाज नाइस टू मीट यू। परफेक्ट। यहाँ पे भी it was, बोलो it was nice to meet you. Very good, perfect, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। The next thing, the last thing, शुक्रिया अदा करते हुए, thank you for your help, I'll owe you। यानी मैं आपका एहसान आवर रहूँगा, एहसान मतलब ये मैं आपका इस एहसान समझो कर इस एहसान को उतारूँगा। ये वर्ड काफ़ी गहराई वाला है, इसमें दो बातें हैं। 10 रुपये आपने मुझे दिए, अब मैं बैंक से लेता हूँ, बैंक वाले ने मुझे 1000 दिया, अब उसको जब ओ करना होता है, हाउ मच शुड आई ओ यू बैक, मुझे वापस कितने लौटाने होंगे। लेकिन जब कोई एहसान किया जाए, एक नॉन मटेरियल सी थिंग हो, स्पिरिचुअल सी थिंग हो, किसी का एहसान किया गया है, एहसान का बदला एहसान है, तो आपने कहा I'll owe you, thank you for your help, I'll owe you। That's all right। जब कोई गरज रहा हो यानी गरज रहा हो, वैसे याद आया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरज रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो थंडर लाइक होते हैं, बादलों का गरजना। मुझ पे इतना ऊंचा मत बोलो, मत गरजो, डोंट बी सो थंडरस एट मी, ये ख़त्म किया एट मी, डोंट बी सो थंडरस एट मी। ये तो बहुत गरज रहा है, इट्स साउंडिंग लाइक थंडरस, इट्स साउंडिंग लाइक थंडर। उस पर यार इतना मत गरजो ओए, डोंट थंडर एट हर, वो उस पर बहुत ज़्यादा गरज रहा है, ही इज़ गेटिंग थंडरस एट हर, एट हर, ही इज़ गेटिंग थंडरस एट हर। अच्छा, मुझे गलत मत समझ लेना, यानी गलत फहमी दूर करने के लिए, मुझे गलत मत समझ लेना, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये रिमूव किया तो ऐसे पढ़ा डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट, मुझ पर गुस्सा मत करो, डोंट गेट मैड एट मी, डोंट गेट मैड एट मी। कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं, गुस्से से पागल हो जाते हैं, जो गुस्सा आपको पागल बना दे उसको कहते हैं गेटिंग मैड। तो आप उसे कहोगे ना, मुझ पे इतना गुस्सा मत करो, डोंट गेट मैड एट मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट, ठंडे हो जाओ यार, चल पहले यार। पैसों के लेन देन में होता रहता है, बकाया पास ही रखना, कीप द चेंजेस। नाई की दुकान पे, हेयर ड्रेसर पे आपने उसको 50 दिए हैं,
उसने तो 40 मांगे थे, 10 रुपये लेने का मन नहीं है, 10 रुपये आप उसे टिप में दे रहे हैं, क्या कहोगे? कीप द चेंजेस। है तो थोड़ा सा रूट सा, लेकिन ये इसी काम के लिए ही इस्तेमाल होता है। कीप द चेंजेस। लेन देन बाद में करेंगे, विल सॉर्ट आउट लेटर। हम किसी पार्क में, कैफेटेरिया में, किसी क्वायरी में, किसी बैंक के बिल में जमा करवाने फीसें वगैरह बाहर खड़े, दो दोस्त आपस में मिल गए, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी हम लाइन क्वायरी को नहीं तोड़ सकते। हमने एक दोस्त को भेजा, चाय ले आओ, वो 3 कप चाय ले आया, हमने पैसे डाले थे, वो कह रहा अच्छा बकाया, वो कह रहा विल सॉर्ट आउट लेटर, हाथ खड़ा, बाद में लेन देन करेंगे। विल सॉर्ट आउट लेटर। बकाया कितना रहा? हाउ मच इज़ द चेंजेस। हाउ मच इज़ द चेंजेस। विल सॉर्ट आउट लेटर, कीप द चेंजेस। द नेक्स्ट सेंटेंस, थक गए, 3 वर्ड, एग्जॉस्टेड, worn out, weary, तीनों एडजेक्टिव। एग्जॉस्टेड थका हुआ, worn out थका हुआ, weary थका हुआ। When I am weary, you make me stronger, you make me stronger. Weary थका हुआ, हिम्मत हारा हुआ। प्यार में उसकी कश्ती नहीं, अगर वो तैर के किनारे को हाथ लगा पाई तो वो थक गया है। मैं थक गया हूँ, आई एम एक्सॉस्टेड। मैं थका हूँ, आई एम worn out। ये होता है जहनी वर्क करके आप थक जाते हैं, आपकी जो रूह है वो थकती है, तो उसमें हम worn out का इस्तेमाल करते हैं। जब आप जहनी तौर पे थकते हैं तो आपका इसको कहते हैं रूहानी तौर पे आप थक गए हैं, आप स्पिरिचुअली फील कर रहे हैं, थकावट से फील कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क किया, रात जागे, जैसे कायदे आज़म, तो वो worn out। वेरी सही वर्ड है, वेरी। आई एम फीलिंग वेरी, आई एम worn out, मैं थका हूँ। लेकिन दूसरी थकावट जो काम की है वो है एक्सॉस्टेड। बाय द वे, जहाँ मर्जी जब इन तीनों को जहाँ इस्तेमाल करें, जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे आप थके हैं, आई एम एक्सॉस्टेड, आई एम worn out, आई एम वेरी, या आई एम फीलिंग वेरी, आई एम गेटिंग वेरी, सब ठीक है। आई एम गेटिंग वेरी, आई एम worn out, आई एम एक्सॉस्टेड। द नेक्स्ट थिंग दैट, जब आप अफसरदा हैं, crestfallen and depressed. He is crestfallen, वो मायूस है, सरनगू है। वो अफसरदा है, he is depressed. The next word is that, जब कोई बात शुरू करने लगे तो उसकी कोई तमीज़ भी होती है। Yeah, I guess so, मेरी बात पे इत्फाक करते हैं। Yeah, I think so, आपका क्या ख्याल है? आप भी यही सोचते हैं? Yeah, I think so. Yeah, I guess so, दोनों चीज़ें, that's fine. In my opinion, मेरे ख्याल से, I believe that, मेरा ये अक़ीदा है, I consider, it seems to me, as I see that, as I see it, to me, यानी जब भी कोई बात शुरू करो तो ये वाले आपकी ओपिनियन, आप अपना किसी से गुफ्तगू कर रहे तो ये वर्ड्स, in my opinion, I believe, I consider, it seems to me, as I see it, to me, it's better, मेरे लिए, मेरे मुताबिक ये बेहतर है। फिर एक कॉपी हो, एक पेंसिल हो और ये वर्ड्स वहाँ हो, ऊपर लिखें कोई बात शुरू करते वक्त, तो आप लिखते हैं इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से, आई बिलीव, मेरा ये अक़ीदा है, मेरा ये मानना है, आई कंसीडर, मैं ख्याल करता हूँ, या आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मेरा ये ख्याल है, इट सीम्स टू मी दैट, मुझे ऐसा लगता है कि ही विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आएगा। एज आई सी दैट, मुझे जैसे ये लग रहा है, टू मी, मेरे नज़दीक, इट्स बेटर, ये नज़दीक, ये बेटर है, बेहतर है। ख़रीदारी करते वक्त पूछिए ये कितना अरसा चलेगा, हाउ लॉन्ग विल इट गो, हाउ लॉन्ग विल इट गो, क्या ये पायदार है, इज़ इट ड्यूरेबल प्रोडक्ट, हमारी इतनी पहुंच नहीं है बाबा, सॉरी आई कैंट अफोर्ड इट। आवाज़ कट रही है, योर वॉइस इज़ चॉपी, आपकी आवाज़, योर वॉइस इज़ चॉपी, कट रही है, कट रही है, क्या है, कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, योर वॉइस इज़ चॉपी। आवाज़ कट जाती है ना फ़ोन पे, जब हम बात करते हैं ना तो थोड़ी सी कटौती सी होती है, जैसे कैंची लगी हो, तो फिर क्या कहेंगे, यार आपकी आवाज़ कट रही है, योर वॉइस इज़ चॉपी, योर वॉइस इज़ कटिंग, इट्स रॉन्ग, योर वॉइस इज़ चॉपी, दैट्स करेक्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी नकल मत करो, डोंट इमिटेट मी। ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही वो सिंगल है, ना तो वो बच्चा है और ना ही जवान, ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ,
और ना ही मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो इस तरह की बातें हम लाइफ में करते हैं जिसमें ना तो, या तो, हाँ तो नीदर, 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 इसमें नीदर और नॉर का इस्तेमाल करना होता है। नीदर ना तो, नॉर ना ही, राइट। जैसे ना तो वो बच्चा है और ना ही वो जवान। नीदर ही इज kid nor a man, ना तो उसकी शादी हुई और ना वो सिंगल है, यानी कंवारा या कंवारी। नीदर ही इज मैरिड nor he is single, nor he is single। ना तो वो बच्चा है ना वो आदमी। Neither he is a kid nor a man, you say। ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूं और ना मैं तुम्हें चाहता हूं। Neither I like you nor I want, neither I like you nor I want। उसे समझाओ यार, प्लीज 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 रिकंसाइल हिम। अब रिकंसाइल क्या होता है नाजरीन? जब कोई दोस्त आपस में झगड़ पड़ते हैं, उनके आपस में हालात ख़राब हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो उनके दरमियान जो सुलह की जाती है तो रिकंसाइल किया जाता है, राइट। उसे समझाओ, रिकंसाइल हिम। उसे समझाओ यार, प्लीज़ रिकंसाइल हिम। हमारी आजकल बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट इन गुड टर्म्स। गुड टर्म्स होता है हालात अच्छे होना, राइट। कंट्रीज टू कंट्री, लोग टू लोग, राइट। मेल टू फीमेल, हस्बैंड टू वाइफ, हालात बिगड़ जाते हैं तो वो टर्म्स नॉट गुड। हम क्या कहेंगे? वी आर नॉट इन गुड टर्म्स। यहाँ दरख्त हुआ करते थे, यहाँ दरख्त हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी ट्रीज। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल है ना, यूज्ड टू, हुआ करता था। यूज्ड टू की केमिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं इसका एक अलग से लेक्चर भी बनाऊंगा, लेकिन चुनांचे इसमें मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ बताने में। तो यहाँ से मेरे सर पर बाल हुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हैं, सब हैं, उतने ही हैं जितने पहले थे। कोई गंजा है वही कहता है मेरे सर पर बाल हुआ करते थे। देयर इट यूज्ड टू बी हेयर ऑन माई हेड, या फिर ओवर माई हेड। देयर इट यूज्ड टू बी, यहाँ शायद स्कूल हुआ करता था। देयर इट माइट बी यूज्ड टू अ स्कूल, यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था। देयर इट यूज्ड टू बी अ हॉस्पिटल, यहाँ दरख्त हुआ करते थे। देयर इट यूज्ड टू बी ट्रीज। हम यहाँ बैठा करते थे, हम यहाँ बैठा करते थे। We used to sit here, we used to sit here। हम यहाँ बैठा करते थे। We used to sit here। वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। They used to fight with one another, they used to fight with one another। हम एक दूसरे से बात किया करते थे। We used to talk with each other। इन दो फिक्रों का एक गहरा ताल्लुक था, एक तो एक दो दोनों के दरमियान में है और एक ज़्यादा के दरमियान में। तो एन अदर और ईच अदर में क्या डिफरेंस है? एन अदर में ये डिफरेंस हुआ कि एन अदर, वन एन अदर, जब 5, 6, 7 यानी 2 से ज़्यादा लोग आपस में कुछ किया करें, अमंग, तो उसमें क्या होगा? वन एन अदर। जैसे वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे, वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे, वो एक दूसरे के साथ खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले विद वन अनदर। अगर 2 लोग हैं यानी 2 दोस्त, तो फिर होगा ईच अदर। दे यूज्ड टू फाइट, दे यूज्ड टू टॉक, दे यूज्ड टू सिट विद ईच अदर। तो फिक्रा था, हम यहाँ बैठा करते थे। वी यूज्ड टू सिट हियर। वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। दे यूज्ड टू फाइट विद वन अनदर। हम एक दूसरे से बात किया करते थे। वी यूज्ड टू टॉक विद ईच अदर। ये जो वी है इसको आप वी की कह लिया करें। वी यूज्ड टू टॉक विद वन अनदर, वी यूज्ड टू टॉक ईच अदर। हम रात को देर से सोया करते थे, नहीं क्या करते हैं। मैंने जानबूझकर ऐसे बोला है ताकि आपको बतलाता चलूँ कि अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, उसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल कैसे करना है। हम रात को देर से सोया करते हैं, मैं इस फ़ोन का आदी हूँ। वो पब्लिक प्लेस में सो जाया करते हैं, तो इसमें प्रेजेंट की रूटीन की एक्टिविटी है, इसमें भी हमने यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, राइट।
हम रात को देर से सोया करते हैं। वी आर यूज्ड टू स्लीप लेट नाइट। वी आर तो आर इज एम का इस्तेमाल करना है, यानी इज एम आर का इस्तेमाल करना है यूज्ड टू के साथ। अगर आपने इज एम आर का इस्तेमाल ना किया तो आप समझ जाएं आप माजी में चले गए, यानी आप क्या करते थे। हाँ, अगर आपने इज एम आर का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, आप मौजूदा ज़माने में। हम रात को देर से सोया करते हैं। वी आर यूज्ड टू स्लीप लेट नाइट। मैं इस फ़ोन का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू दिस फ़ोन। आई एम यूज्ड टू दिस फ़ोन, यानी मोबाइल कुछ इस तरह का है कि बहुत पुराना है लेकिन फिर भी मैं इसका आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू दिस फ़ोन। वो पब्लिक प्लेस में सो जाया करते हैं। दे आर यूज्ड टू स्लीप इन पब्लिक प्लेस। If you're going to talk about house, when you're outside in the guest house, you're gonna ask some question with the person who is the manager or receptionist. You're gonna ask, क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? क्या नाश्ते में भी इस पैकेज में दिया जाएगा? क्या आप नाश्ता भी देंगे? क्या ये कमरा एसी वाला है? 3 फिक्रात ऐसे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? Do you have any room available? Do you have any room available? Do you have any room available? रूम की किसी का आपको पता होना चाहिए। रूम का मतलब होता है खाली जगह। रूम उसको भी कहते हैं जो 4 दीवारी वाला हो। क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? Do you have any room available? क्या नाश्ते में इस पैकेज में ही दिया जाएगा, यानी नाश्ता भी दिया जाएगा इसी पैकेज में? Is breakfast included? Is the breakfast included? क्या ये कमरा एसी वाला है? Is that room air conditioned? Now let's talk about get. It's causative form. Sometime causative form का भी मुझे भी लेक्चर बनाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको टच दे दूं कि मैं आपको कैसे समझाता हूँ। देखें, काम 2 किस्म के होते हैं। नहीं, काम होता है एक किस्म के ही है। एक होता है खुद करना और एक होता है किसी से करवाना। इसी तरह कॉजेटिव वर्ब्स पे आ जाएं। एक होता है मैं कार वॉश कर रहा हूँ, मैं नाखून तराश रहा हूँ, मैं बाल काट रहा हूँ, मैं बाल काट रहा हूँ, मैं नाली साफ़ कर रहा हूँ। ये मैं खुद कर रहा हूँ। इसमें आपको कॉजेटिव फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कहना है कि मैंने कार वॉश करवानी है, मैंने इस पंखे को ठीक करवाना है, मैंने इस बच्चे को पढ़वाना है किसी से, मैंने बाल कटवाने हैं, तो फिर आपको कॉजेटिव फॉर्म की यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉजेटिव फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी हैं? उनमें से एक गेट भी है। राइट, मुझे अपनी कार वॉश करवानी है। आई हैव टू गेट माई कार वॉश्ड। मुझे बाल कटवाने हैं। आई हैव टू गेट अ हेयर कट, या फिर आई हैव टू गेट माई हेयर कट। मुझे पसीना आ रहा है। आई एम गेटिंग स्वेट। मैं गीला हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग वेट। मेक इट। मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दो। मेक माई ड्रेस आयरन। वज़ू करो। परफॉर्म अब्लूशन। इस मसले पर मेरी मदद करो। हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अपने बड़ों की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मेरा बिस्तर लगा दो। मेक माई बेड। देखें, बिस्तर लगा दो, मेक माई बेड। बर्तन धो दें, डू द डिशेस। बर्तन धोना, डू द डिश। बिस्तर लगाना, मेक द बेड। मेरा बिस्तर लगाओ, मेक माई बेड। चाय पी लो, टेक टी। आराम करो, टेक रेस्ट। सुधर जाओ, सीधे आओ, इंसान बनो, बी सीरियस, बी मैन। समझ आ गई? गॉट इट? कुर्सी उल्टी पड़ी हुई है। The chair is lying upside down. The chair is lying upside down. अंदर आने से पहले जूते उतार दें। Take off the shoe before you come in. Take off the shoe before you get in. इसके जूते टूटे फूटे हुए। His shoes are torn. आप कहाँ के हो? Where do you belong to? Where do you belong to? आपको इसका कैसे पता? How do you know about that? How do you know about it? How do you know about it? क्या आप इतनी जल्दी कह सकते हैं how do you know?
How do you know? How do you know about it? क्या आपको मेरा किसने बताया? Who told you about me? Who told you about me? आप इस इलाके में क्यों आए? Why you entered in this area? आपको किस तरह से याद आया? What made you reminded? What made you reminded? आपको किस तरह से देर हुई? What made you late? What made you late? ये बात पक्की कर लेना कि आपको देर ना हो जाए. Make sure you're not late. Make sure you're not late. क्या आपको मैं याद हूँ? Do you remember me? Do you remember me like I remember you? Do you spend your life going back into your mind to the time? क्या आपको मैं याद हूँ? Do you remember me? क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know me? Do you know me? आपको कहाँ जाना है? Where do you have to go? Where do you have to go? आपको कहाँ जाना है? Where do you have to go? मुझे एडमिन ब्लॉक जाना है. I have to go to admin block. क्या आपको प्रिंसिपल ऑफिस का पता है? Do you know where is principal office? Do you know the principal office? मुझे इस मसले से दूर रहना है, भागना है, छुटकारा हासिल करना है. I wanna get rid of this problem. आप कहाँ रहे हो? Where have you been? आपकी ज़ात क्या है? What's your family name? What's your family name? वो जो कहना चाहते हैं कि What's your caste नहीं आएगा, ये भी ठीक है. What's your family name? मेरे पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो गई यार. My passport has been expired. मुझे देर हो गई है. I got late. ये वो मुझे कई बार कह चुकी. She has spoken this to me lots of times. उसकी आँख ज़ाया हो गई है. His eye has been expired. उसकी नज़र कमज़ोर है. He has weak eyesight. मैं दूर से नहीं देख सकता. I can't see from far. मुझे आपसे जल्द से जल्द मिलना है. I have to meet you as soon as possible. मुझे डॉक्टर से मिलना है. I have to see a doctor. मुझे आपसे बात करना है. I have to talk to you. मुझे अब जाना है. I need to go now. वो आपसे मिलना चाहते हैं. They need to meet you. वो अब खाना चाहती है. She needs to eat now. She needs to eat now. Eat now. क्या आपके पास खुले हैं? Do you have change? क्या आपके पास कोई छतरी है? Do you have umbrella? क्या आपके पास तबसरा है इस मामले के बारे में? Do you have an opinion about this matter? Do you have an opinion about this matter? या तो तुम जाओगे या मैं. Either you should go or I. या तो इनको चुप हो जाना चाहिए या फिर मैं जाऊं. Either they should be quiet or I should leave. बस करें, बस करें, बस. जब मैं शुरू हुआ ना, Either you should stop or I start. इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है. There is much difference between this and that, this and that, this and that. There is much difference between this and that. इन दो घरों के बीच एक तालाब है. There is a pond between these two houses. There is a pond between these two houses. मुझे और तुझे में क्या फ़र्क है? What's the difference between you and me? मेरे और तुझ में एक दरीना सी दुश्मनी है. There is an enmity between you and me. तुझ में और मुझ में एक दुश्मनी है. There is an enmity between you and me. Will you? क्या मुझे आप बात बताएंगे? Would you like to tell me one thing? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? Would you like to talk to me? क्या अब आप नहाना पसंद करोगे? Would you like to take a bath now, please? Would you like to take a bath now, please? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? Would you like to talk to me? क्या आप मुझे एक बात बतलाएंगे? Would you like to tell me one thing?